Hey guys, welcome to my channel English Seekho. This is the fourth part of Homecoming. I hope you are finding videos on this story useful. Homecoming is really very interesting and pathetic story of a boy who is misunderstood by all. In part 3, we ended where maternal uncle of Fatik proposed his mother to take him to Calcutta, and Fatik readily gave his consent. So let's see what happens next. Fatik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. As soon as जैसे ही सब कुछ सेटल हो गया, तय हो गया, Fatik kept asking his uncle every minute, हर मिनट अपने अंकल से पूछता था when they were to start, अब वो कब चलने जा रहे हैं, कब वो कलकत्ता जाएंगे. He was on pins and needles all day long with excitement. Excitement means होता है उत्साह, and there is a very beautiful phrase here, on pins and needles. On pins and needles means in an agitated state of suspense, रोमांच की अवस्था. So he was very much excited that he is going to Calcutta and lay awake most of the night. Lay is a verb, awake मतलब जागना, lay मतलब पड़े रहना. So most of the time he lay awake most of the night. इतना उत्सुक था, इतना जोश था उसके अंदर कि उसको नींद नहीं आती थी. He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles. Bequeathed मतलब होता है to leave property, to leave your property to a person. अपनी चीजों की वसीयत किसी को कर देना. So because it was the time to depart his village, it was the time of his departure. So he became very considerate, he became very kind to Makhan, and in perpetuity means forever, the state of lasting forever. So हमेशा के लिए उसने अपनी चीजों, जो उसके पास चीजें थी, his fishing rod, his big kite, his marbles means कंचे. So everything he gave to Makhan. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. So at this time of departure, when the time of the departure came, he became very generous. Generosity means udarta. So his generosity towards Makhan was unbounded. Unbounded. Bounded means सीमित. Unbounded असीमित. तो उसकी उदारता माखन के प्रति असीमित हो गई चलते समय. When they reached Calcutta, जब वो कलकत्ता पहुंचे, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. When Fatik reached Calcutta, then it was for the first time that he met his aunt, his maternal aunt. So acquaintance माने होता है जान पहचान, acquaintance. So he made an acquaintance of his aunt for the first time in his life. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. By no means, किसी भी तरह से she was not pleased. She was displeased. Pleased माने होता है प्रसन्न. So she was not pleased with this unnecessary addition. Fatik was an unnecessary addition to her family. He was an extra member of his family. So unnecessary means अनावश्यक. Addition means किसी का जुड़ना. So he did not like Fatik at all. She found her own three boys. Fatik's maternal uncle had 3 sons. So she found her own 3 boys. अपने 3 लड़कों को quite enough to manage without taking anyone else. उसके लिए अपने ही लड़कों को मैनेज करना मुश्किल होता था, बहुत उसके 3 लड़के ही उसके लिए पर्याप्त थे. And to bring a village lad, और उस पर एक गांव के छोकरे को ले आना, of 14 years का, into their midst was terribly upsetting. Terribly, very, अत्यधिक, बहुत अधिक. Upsetting, disturbing. So in their midst means मध्य में. तो उनके बीच में जो एक एक्स्ट्रा व्यक्ति आ गया था, 14 ईयर का एक विलेज का लड़का, वो बहुत ही उनके परिवार को डिस्टर्ब करने वाला था.
Bishambhar should really have thought twice before committing such an indiscretion. Indiscretion is a very beautiful word. आपने कई बार विवेक शब्द होता है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्क्रेशन, और इसी का उल्टा होता है इनडिस्क्रेशन. द अपोजिट ऑफ डिस्क्रेशन इज इनडिस्क्रेशन, अविवेक. So his maternal aunt thought that Vishambhar is the name of Phatik's maternal uncle. Vishambhar should really have thought twice before committing such an indiscretion. ऐसा अविवेकपूर्ण निर्णय लेने से पहले बिशंभर को दो बार सोचना चाहिए था. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. मनुष्यों की इस दुनिया में, in this world of human affairs, there is no worse nuisance. Nuisance means होता है something which causes trouble. कोई एक ऐसी चीज जो कि trouble create करे, परेशानी का सबब बने. So then a boy at the age of 14. At the age of 14, a boy becomes a very disturbing element in a family. He is neither ornamental. Ornament का मतलब आप समझते होंगे आभूषण से, लेकिन यहाँ पर ornamental का मतलब है सुंदरता से. So he is neither ornamental nor useful. Neither, ना ही वो देखने में सुंदर लगता है और ना ही वो कोई यूजफुल होता है, किसी काम का होता है. It is impossible to shower affection on him as on a little boy. It is impossible, इसीलिए वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, छोटे बच्चों की तरह भी सुंदर नहीं होता. So it becomes impossible, यह संभव हो जाता है to shower. Shower मतलब बरसाना, affection स्नेह उस पर उसको खिलाना, उसको प्यार करना एक छोटे बच्चे की तरह मुश्किल हो जाता है. And he is always getting in the way. Getting in the way means he always creates trouble. हमेशा कुछ न कुछ बाधा, रास्ते में बाधा उत्पन्न करता रहता है. If he talks with a childish lisp means होता है तुतलाना, और child से आया है बच्चों की तरह तुतलाना. So if he talks with a childish lisp, he is called a baby. अगर वो बच्चों की तरह तुतला के बच्चों के स्टाइल में बोलने की कोशिश करे तो उसे कहा जाएगा कि वो एक बेबी है. एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, और अगर वो ग्रोन अप बड़ों के तरीके से, ग्रोन अप मीन्स बड़े, वयस्क, एडल्ट, अगर एडल्ट के तरीके से आंसर करे, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट. इम्पर्टिनेंट मीन्स रूड, अनसिविल, धृष्ट, बदतमीज. तो उसको कहा जाएगा कि तुम बहुत अनसिविल हो, रूड हो, बदतमीज हो. In fact, any talk at all from him is resented. Resented means feeling bitterness, अप्रसन्न होना, परेशान होना, नाराज हो जाना. So in fact, any talk at all from him, चाहे वो कुछ भी बात करे, लोग उससे नाराज हो जाते हैं. Next passage. Then he is at the unattractive growing age. लड़कों के लिए की एज में स्पेशली इस समय ये होता है कि वो एकदम से उनकी लंबाई बढ़ जाती है, गला बढ़ जाता है, चेहरे पर हड्डियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, पूरा शरीर हड्डी का बना हो ऐसे दिखाई देता है. सो ही इज एट द अनअट्रैक्टिव एंड ग्रोइंग एज. अनअट्रैक्टिव माने अनाकर्षक और बढ़ती हुई उम्र का होता है. ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट. उसके कपड़े, ही ग्रोज, देखो हम कहते हैं कपड़े छोटे हो गए, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स. वो अपने क्लोथ्स के बाहर बढ़ जाता है. विद इनडिसेंट हेस्ट. इनडिसेंट मतलब डर्टी, बहुत ही गंदे तरीके से वो बढ़ जाता है, जल्दी बढ़ता है. हेस्ट माने जल्दी. हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वार्स. हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स माने अजीब सी आवाज हो जाती है, भद्दी सी, मोटी सी आवाज हो जाती है. एंड ब्रेक्स, और बीच बीच में टूटती है. एंड क्वावर्स मीन्स शेक, ट्रेम्बल, कांपती है, अजीब सी आवाज हो जाती है. हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइकली. अनसाइकली मीन्स अगली. उसका फेस अचानक से एंगुलर, तिकोना हो जाता है, और अनसाइकली मतलब अगली हो जाता है, वो देखने में कुरूप लगने लगता है. अनअवॉइडेबल लैप्सेस. It is easy to excuse the shortcomings of early childhood.
इट इज इजी टू एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मीन्स क्षमा करना, शॉर्ट कमिंग्स माने होता है मिस्टेक्स। सो इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो बचपन, शुरुआती बचपन की जो कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उन्हें माफ करना आसान होता है। बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट, इट इज हार्ड टू टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स सहन करना, लेकिन इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। अगर 14 ईयर्स एज का कोई लड़का है और वो ना चाह करके भी, अनअवॉइडेबल, वो जिसको अवॉइड नहीं कर सकता, जिससे बच नहीं सकता, वैसे लैप्सेस, लैप्सेस मीन्स होता है अ ब्रीफ और टेम्परेरी फेलियर, और जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कुछ त्रुटियां या भूल। अगर उसके बोलने में कुछ भूल या त्रुटियां होती हैं या उससे कुछ त्रुटियां होती हैं तो भी उसको इट इज हार्ड टू टॉलरेट, उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। मतलब 14 ईयर्स एज के बच्चे को की गलतियों को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, और जो लड़का होता है वो भी पेनफुली, वो जानता है कि उसके साथ क्या चीजें हो रही हैं, क्या बदलाव उसके शरीर में आ रहे हैं, एंड ही बिकम्स सेल्फ कॉन्शियस, अपने को लेकर सचेत हो जाता है। सेल्फ मतलब अपने को लेकर, और कॉन्शियस माने सचेत। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल ही इज ईदर अनड्यूली फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पर वही चीज जो मैंने पहले बताई थी, इफ ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, अगर वो बड़े लोगों से बात करता है, ही इज ईदर अनड्यूली फॉरवर्ड, उसे कहा जाता है, अनड्यूली मीन्स होता है टू मच, तो उसे ये कहा जाता है कि तुम तो बहुत अधिक फॉरवर्ड हो, बहुत अधिक बड़ी बड़ी बातें करते हो, आगे बढ़कर बातें करते हो। और एल्स सो अनड्यूली शाय दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, और कभी कभी जो उसका एग्जिस्टेंस, जो उसका अपना अस्तित्व होता है, द ग्रोथ in his body which he is suffering from, so he becomes, sometimes he becomes ashamed of, लज्जित होता है, अपने अंदर आ रहे बदलावों को लेकर के वो संतुष्ट नहीं हो पाता है, उनसे एडजस्ट नहीं कर पाता है, उनको लेके ashamed फील करता है। तो unduly shy, unduly मतलब too much, और shy means मतलब होता है शर्म करना, शर्माना। so he becomes very he feels unduly shy, he becomes unduly shy that he appears ashamed of his very existence, तो अपने existence को लेकर के वो ashamed feel करता है। ये next passage, yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, लेकिन यही वो नाजुक अवस्था होती है जिस समय अपने दिल में, अपने हृदय में, हार्ट ऑफ हार्ट्स, अ यंग लैड, हार्ट ऑफ हार्ट्स का मतलब अपने हृदय के अंतरतम में, बहुत हृदय की गहराइयों से, अ यंग लैड, एक यंग बच्चा, लड़का, मोस्ट क्रेव्स, क्रेव्स माने डिजायर, चाहना, इच्छा करना, उसको सबसे अधिक इच्छा होती है किस चीज की, फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, और लव माने होता है प्रेम। And he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. See the very beautiful line. He becomes the devoted slave. Devoted माने होता है समर्पित, slave means होता है गुलाम। तो अगर if anyone shows him consideration, जरा सा भी उसको थोड़ा सा भी प्रेम या उसको महत्व दे दे, तो वो उसका समर्पित गुलाम बन जाता है, समर्पित नौकर बन जाता है, devoted slave. But none डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी उसे ओपनली लव करने की हिम्मत नहीं करता। डेयर माने होता है हिम्मत। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि ये ऐसा माना जाएगा कि उसको अनड्यू इंडल्जेंस, उसको अत्यधिक प्रेम देना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, और इसलिए उसके लिए, उस तरीके के लड़कों के लिए, इस उम्र के लड़कों के लिए ये चीज अच्छी नहीं होगी। सो What with scalding and chiding, डांटना और फटकारना। Scalding माने डांटना, chiding means फटकारना। He becomes very much like a stray dog. Stray माने होता है गली का, आवारा, dog माने आप जानते ही हैं। So he becomes very much like a stray dog that has lost his master.